Good morning, students. This is Amit Tiwari, your English teacher. Students, let me summarize what we have studied in our previous video. We have started studying a new lesson, the thief's story. Until now, we have studied that Hari was a young boy of 15, but he was a thief and a cheat. At a wrestling match, he came across Anil and won the confidence of Anil and came to his house as a servant. Anil was a writer and did not earn much, and Hari agreed to work for him only for food. Hari did not know how to cook, and the first meal cooked by Anil was so bad that Anil gave it to a stray dog and asked him to leave. But Hari's appealing smile made Anil to give up his decision to turn him out. Hari made a profit of ₹1 a day out of the purchase of a daily needs of Anil. So students, let us see what happens next. One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. Students, here the meaning of tuck is to put something into a small space, especially to hide it or to keep it safe. सो स्टूडेंट्स, एक शाम हरी ने अनिल को कुछ नोट्स के बंडल को घर लाते हुए देखा और उसने हरी से बताया, यानी अनिल ने हरी से बताया कि उसने एक किताब पब्लिशर को बेची है और पब्लिशर ने उसको पेमेंट किया है। उस रात अनिल ने उस पैसे को अपने मैट्रेस के नीचे छुपा दिया। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. अब हरी क्या कह रहा है कि अनिल के पास काम करते हुए हरी को तकरीबन 1 महीना हो गया है और जो थोड़े बहुत पैसे को लेकर हेर फेर हरी जो करता है, उसके अलावा उसने अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं किया है। अब उसका प्रोफेशन क्या है? उसका प्रोफेशन चोरी का है, यानी कि उसने चोरी से संबंधित कोई काम नहीं किया है। I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. अब हरी बताता है कि अनिल ने उसको अपने दरवाजे की एक चाबी दे रखी है और वो कभी भी कमरे में आ सकता है, जा सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। और हरी ये भी कहता है कि अभी तक वो जितने भी व्यक्तियों से मिला है, जितने भी पर्सन से मिला है, उसमें से अनिल सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. Now Hari is saying that it was very difficult for him to rob Anil because as it has already been told that according to Hari he was the most trustworthy person Hari has ever met. That's why Hari finds it very difficult to rob Anil. वो कहता है कि एक लालची आदमी को, एक ग्रीडी आदमी को लूटना या उसके यहाँ चोरी करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो इसको टॉलरेट कर सकता है, वो उसको सह सकता है। ग्रीडी आदमी इस चीज़ को सह सकता है, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। और एक क्लमजी आदमी या एक केयरलेस आदमी को लूटना या उसके यहाँ चोरी करना ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हो गई है। Sometimes he does not even notice he has been robbed, and that makes all the pleasure out of the work. और जब उसे पता नहीं चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हो गई है या उसको लूट लिया गया है, तो चोरी करने का सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। It will not be a pleasurable task to loot someone who is very careless or who is very clumsy. Well, it's time I did some real work. I told myself, I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he does not even pay me. हरी कहता है कि मेरा जो प्रोफेशन है चोरी करने का, उसकी प्रैक्टिस लगभग छूट गई है, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया अनिल के यहाँ काम करते हुए
और इस वजह से अब वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई काम करना चाहता है। और वो ये भी कहता है कि अगर मैं अनिल से पैसे नहीं चुराता हूँ तो जाहिर सी बात है वो उन पैसों को अपने दोस्तों के ऊपर खर्च कर देगा, उन्हें बर्बाद कर देगा। दूसरी बात ये कि वो मुझे पेमेंट भी नहीं करता, वो मुझे सैलरी भी नहीं देता। लेकिन हरी यहाँ इस बात को मेंशन नहीं करता है कि अनिल उसको अपने यहाँ रखे हुए है, वो अनिल के यहाँ रहता है, अनिल के यहाँ खाना खाता है और अनिल समय समय पे उसको पढ़ाता भी रहता है, उसको सिखाता भी रहता है। लेकिन फिर भी वो इस बात को ज़रूर मेंशन करता है कि अनिल उसको कोई सैलरी नहीं देता है और अगर वो उसके यहाँ से पैसे नहीं चुराएगा तो जो भी वो पैसे आज बुक को बेच के लाया है वो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के ऊपर उड़ा देगा, उन्हें खर्च कर देगा। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. Anil was sleeping and a beam of moonlight crossed over the balcony and was falling on the bed of Anil. Hari found this situation very favorable to steal the money which was tucked under the mattress. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Hari thought that if he would be able to steal the money, he would easily catch the 10:30 express to Lucknow. He just slept out of the blanket and crept towards the bed of Anil. His face was clear and unlined. वो धीरे से अपने ब्लैंकेट से बाहर आया और अनिल के बेड की तरफ रेंगते हुए चला गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बहुत शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, उसके चेहरे पे कोई दाग धब्बा नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कैर्स। और यहाँ हरी कह रहा है कि उसके चेहरे पे तो बहुत सारे दाग हैं लेकिन वो सारे के सारे दाग घाव के हैं। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर नोट्स। अनिल कहता है कि उसके हाथ जो है मैट्रेस के नीचे धीरे से सरके और नोट को ढूंढने लगे। When I found them, I drew them out without a sound. और जब वो नोट मुझे मिल गया मैंने धीरे से बिना आवाज़ करते हुए उन सारे नोटों को बाहर निकाल लिया। अनिल सी in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. हरी ने कहा कि नींद में अनिल ने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ मुड़ के सो गया। मैं बिल्कुल घबरा गया और धीरे से रेंगते हुए कमरे से बाहर चला गया। When I was on the road, I began to run. और कमरे से बाहर निकल के मैं सीधे रोड पे आ गया और दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, held there by a string of my pajama. और अपने पैजामे के नाड़े से मैंने नोट को अपने कमर पे बांध रखा था। I slowed down to a walk and counted the notes. मैं अपने दौड़ने की रफ्तार को धीरे किया और नोट्स को गिनना शुरू कर दिया। 600 रुपीज़ इन 50s. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। और जब मैंने नोटों को गिना तो पूरे के पूरे 600 रुपये थे और सारे 50 के नोट थे। और मैंने सोचा कि इन 600 रुपये में तो मैं बिल्कुल एक अमीर आदमी की तरह कम से कम 2 हफ्ते तक रह सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. और जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मैं टिकट के ऑफिस के पास नहीं गया क्योंकि मैं कभी भी टिकट खरीदता ही नहीं था। मैंने अपने जीवन में ट्रेन में सफ़र करने के लिए, ट्रेन में जर्नी करने के लिए मैंने कभी भी टिकट नहीं खरीदा था और स्ट्रेट अवे मैं प्लेटफॉर्म पे चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। और लखनऊ एक्सप्रेस खुलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स। और ट्रेन रफ्तार पकड़ने वाली थी और मुझे कूद के किसी न किसी कंपार्टमेंट में चढ़ जाना चाहिए था। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों हेजिटेशन हो रही थी और इसका कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा था और इस तरह मैं वहाँ से दूर जाने का या वहाँ से भाग जाने का चांस खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform.
और जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये पूरी रात को मैं कहाँ बिताऊँगा। आई हैड नो फ्रेंड, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वी आर मोर ट्रबल दैन हेल्प। मेरा कोई भी मित्र नहीं था, वो इसलिए क्योंकि मेरा मानना था कि मित्र परेशानी का कारण ज़्यादा बनते हैं बजाय सहायता करने के। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं किसी छोटे होटल में जो कि स्टेशन के पास में ही था उसमें रुक के किसी को भी अपने बारे में अवेयर होने देना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पास चुराए हुए नोट थे। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। मैं सिर्फ और सिर्फ इस शहर में सिर्फ एक ही आदमी को जानता था जिसके यहाँ मैंने चोरी की थी। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, और इस तरीके से स्टेशन को छोड़ के मैं सीधे बाजार चला गया। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीप आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अपने इस चोरी के छोटे से करियर में मैंने तमाम पुरुषों के चेहरे को पढ़ा है जब वो अपना कोई कीमती सामान खो देते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता है उसके चेहरे पे डर के भाव दिखाई देते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर आदमी होता है वो नाराज़गी दिखाता है, वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन मैं जानता हूँ जब अनिल को ये पता चलेगा कि मैंने उसके यहाँ चोरी कर ली है तो उसके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ दुख के भाव दिखाई देंगे। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। वो इसलिए नहीं क्योंकि उसका पैसा चोरी हो गया है, वो दुख के भाव इसलिए दिखाई देंगे क्योंकि उसका विश्वास टूट गया है, क्योंकि उसने हरी के ऊपर बहुत विश्वास करके उसे अपने घर ले आया था, उसको पढ़ाता था, उसको 2 टाइम का खाना देता था और पैसे देके उसको बाज़ार भेजता था सामान लाने के लिए। उसको अपने कमरे की चाबी भी दे रखा था। अनिल ने उसको ये भी इजाज़त दे रखी थी कि वो चाबी का इस्तेमाल करके कभी भी कमरे में आ सकता है और जा सकता है। इस तरीके से हरी ने अनिल का ट्रस्ट तोड़ दिया था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, और इस समय चलते हुए मैं एक मैदान में आ गया था और एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी वो बहुत ठंड से भरी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि ये नवंबर का शुरुआत था, नवंबर महीने का शुरुआत था। एंड अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो हल्की फुल्की ठंडी फुहार हवा की चल रही थी उससे मुझे थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और तुरंत ही बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लेव द रेन अक्रॉस माई फेस। मेरा शर्ट और मेरा पैजामा जो है वो मेरे स्किन पे चिपक गया था भीगने की वजह से, और एक ठंडी हवा का झोंका आया और वर्षा की फुहार मेरे चेहरे पे चारों तरफ फैल गई। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt the notes. They were damp from the rain. और इस तरीके से बाज़ार में मैं एक क्लॉक टावर के नीचे छाँव में बैठ गया। इस समय आधी रात हो गई थी और मैंने नोटों को महसूस किया, वो पूरी तरीके से बारिश से भीग गए थे। Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. अब हरी को दुख होता है, वो कहता है अनिल के पैसे, संभवतः कल सुबह वो मुझे 2 या 3 रुपए देता सिनेमा देखने के लिए, लेकिन इस समय तो मैंने उसके सारे पैसे ले रखे हैं। I could not cook his meal, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अब मैं उसके लिए खाना नहीं पका सकता, उसके लिए बाज़ार नहीं जा सकता और उसके द्वारा सिखाए गए पूरे सेंटेंसेस नहीं सीख सकता। अब यहाँ पे हरी को रिग्रेट हो रहा है कि उसने पैसे क्यों चुराए। अब उसे महसूस हो रहा है कि अब अनिल के लिए वो कोई काम नहीं कर सकता है, और सबसे ज़्यादा दुख उसे इस बात का हो रहा है कि अब अनिल जो उसे पढ़ाता था, जो सिखाता था, अब वो नहीं सीख सकता है। आई हैड फॉरगेटन
अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। और इन सारी बातों को मैं चोरी करने के एक्साइटमेंट में भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। मैं जानता हूँ कि अगर मैं पढ़ लिख लेता, जो कि अनिल मुझे पढ़ा रहा था, सिखा रहा था, तो इन 100-200 रुपए से उसकी कीमत कहीं ज़्यादा होती, या वो पढ़ाई लिखाई भविष्य में मुझे कहीं ज़्यादा कमाने का मौका देती। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना बहुत ही आसान काम है, एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और कभी कभी चोरी करते हुए पकड़े जाना और भी आसान है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बन जाना, एक बुद्धिमान और एक रिस्पेक्टेड मैन बनना, ये कहीं बहुत बड़ी बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अब मुझे अनिल के पास चले जाना चाहिए, ऐसा हरीश सोच रहा है। वो अपने आप से कहता है कि अनिल के पास अगर मैं चला जाऊंगा, जो कि मुझे चले जाना चाहिए, तो मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ और सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकता हूँ। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और इसी घबराहट के साथ मैं कमरे में चला गया। किसी चीज़ को चुराना बहुत आसान होता है, और उसे बिना किसी को पता लगे वापस कर देना, ये बहुत ही कठिन काम होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। मैंने दरवाजे को धीरे से खोला और बादलों से भरी चांदनी रात में रास्ते में खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई crept to the head of the bed and my hand come up with notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. मैं सिरहाने की तरफ गया और मेरे हाथों में नोट थे। मैंने अनिल के सांस को अपने हाथों पे महसूस किया और मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। उसके बाद मैंने मैट्रेस का किनारा ढूंढा और धीरे से नोट को मैट्रेस के नीचे डाल दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। देयर वॉज अ 50 rupee नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। माई हार्ट सैंक। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड। मैं अगली सुबह देर से उठा और अनिल ने पहले ही चाय बना रखी थी और उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए चाय को मुझे पकड़ा दिया, और उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और हाथ में 50 रुपये का नोट था और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे। मैंने कुछ पैसा कल बनाया था। ही एक्सप्लेन्ड। उसने कहा, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब मैं तुम्हें रेगुलर बेसिस पे सैलरी दिया करूँगा। माई स्पिरिट रोज, बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। मेरा कुछ हौसला बढ़ा, लेकिन जब मैंने नोट को अपने हाथ में पकड़ा, मैंने देखा कि नोट अभी भी गीले थे रात की वर्षा की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। और अनिल ने कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. उसे पता चल गया था, लेकिन उसने इस बात का जरा भी एहसास नहीं होने दिया। ना ही उसके होठों से कुछ पता चला, ना ही उसके आँखों से कुछ जान पड़ा। और इस तरीके से मैं हमेशा की भांति अपनी सम्मोहक मुस्कान बिखेर दी, लेकिन इस बार इस मुस्कान में कोई एफर्ट नहीं था। ये नेचुरली अपने आप मेरे चेहरे पे उभर के आया था। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी। हैव अ गुड डे।